हम लोग ट्रैफिक का भी, सिक्योरिटी का भी और बाकी इंतजाम, और उसी श्रृंखला में जो ये पहली ट्रैफिक पुलिस की ब्रीफिंग है, बाकी जो ब्रीफिंग्स है वो भी समय समय पर विभिन्न जो वर्टिकल्स हैं, सिक्योरिटी के वर्टिकल्स है, लॉ एंड ऑर्डर के वर्टिकल्स हैं, वो भी विशेष आयुक्त यहाँ पर करेंगे। तो पहली ब्रीफिंग में हम लोग बताना चाहेंगे, जो भी जिज्ञासा है, जो भी कौतूहल है अगर आपका, कि किस तरह का जो यातायात का इंतजाम रहेगा, और उसी श्रृंखला में हमने एक विस्तार से जो है ट्रैफिक एडवाइजरी तैयार की है, जो ट्रैफिक एडवाइजरी आज हम रिलीज कर देंगे इसके बाद में। उसमें हमने प्रयास किया है कि जो भी सेवा हो, एक यातायात के जितने भी अंग होते हैं, अगर आप बस से जाना चाहते हैं, आप एयरपोर्ट की सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप टैक्सी की सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, एसेंशियल सर्विसेज की जो सेवाएं हैं एम्बुलेंस के साथ साथ, सभी के लिए हमने क्या क्या निर्देश तैयार किए हैं और साथ के साथ उसके लिए क्या इंतजाम किए हैं, कहां पर हम लोग नियमन करेंगे, कहां पर हम लोगों का जो है रेगुलेशन रहेगा, और कहां पर प्रतिबंध अगर कहीं पर हम करना चाहेंगे टेम्परेरी पीरियड्स के लिए, वहां पर करेंगे। पहली प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, जो हम एक वर्चुअल हेल्प डेस्क जितने भी यूजर्स हैं फॉर पब्लिक व्यू, ये हम लोग लॉन्च करेंगे आज से, और इसका जो पब्लिक व्यू है आपको कुछ दिनों में जो ट्रैफिक अलर्ट्स के साथ मिलता रहेगा। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का इस्तेमाल करना है, ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है, जो कुछ मैप्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है, हमारी एक ट्रैफिक सेंटिनल ऐप है जो काफी टाइम से चल रही है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, और साथ के साथ सोशल मीडिया के बारे में अगर जानकारी लेनी है, पुलिस सर्विसेज के बारे में जानकारी लेनी है, मेडिकल एम्बुलेंस फैसिलिटीज जिसके बारे में मैंने बताया, और ट्रैफिक अपडेट्स के बारे में जानकारी लेनी है। फॉर द यूजर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आई विल translate in English. We'll have a comprehensive virtual help desk for all the users, those who are visiting Delhi as a delegates also, as a tourist also, as well as citizens of Delhi, as well as other outsiders who are coming to Delhi. We will be launching a virtual help desk. As the screen shows, we will providing information about various services, including transportation services. In transportation services, if you want to know about how you have to commute from airport to the venue or to the various hotels, or if you want to go to certain markets, or if you want to visit hospitals, there will be link in the help desk. Our major focus is how we can provide better services and information to the users, especially concerned with the G20 summit. Traffic arrangements, as far as traffic arrangements is concerned, we will be issuing a detailed traffic advisory, which will give you advisory पर जाइए, link. In detailed traffic advisory, we will be giving you information about the various types of modes of transport available. Say, the main summit venue is in New Delhi. So there will be restrictions in the NDMC area, or we call the New Delhi Police District, which will be a controlled zone in which the authorized vehicles or the identified visitors will be allowed. But in the controlled zone, as well as the rest of the Delhi, metro services will be allowed throughout. It means if you want to come to New Delhi and visit New Delhi at any place, you can come by metro. There will be no restrictions to come by metro for any individual. Secondly, there will be restrictions beyond the NDMC area. That is the ring road area. Beyond the NDMC area, if we say, then we can use all available modes of transport, whether it is buses, whether it is taxi, whether it is TSR, including the metro services. And all these restrictions will come in place from 7th night, 7 और 8 की रात से हम लोग restrictions इनको लागू कर देंगे.
Another major restriction will be commercial vehicles, especially the heavy commercial vehicles will be restricted from the borders of Delhi. Heavy goods vehicle, medium goods vehicles, however, any vehicle which is carrying essential goods or involved in essential services, we will be allowing them throughout, including the medical services, including the ambulance services. There will be no restriction on the movement of ambulance or the medical services or the people who are needing the medical assistance coming by whatsoever mode of transport. For that, we are establishing a special ambulance assistance control room, which will have a dedicated helpline and which will have the dedicated staff. We have identified 20 junctions in and around New Delhi area, which we have analyzed and which we have identified, thinking that at these junctions invariably these ambulances will cross, and in case it is required that they need help or assistance, we will provide them the assistance and try to provide the green corridor also. At any point of time, at whatever time, we will give them an alternative or we will allow them to cross, as we always do during the movement of the VVIPs also. Even during the movement of the Honorable Prime Minister also, we have on several times allowed ambulances coming to AIIMS or RML or to the Army Hospital. In this traffic advisory, we have provided the link to the suggested routes also, suggested roads also for the railway station also, for traffic regulation, medical emergency, IGI airport, DTC buses. Beyond Ring Road, DTC buses, city bus services will operate. In NDMC area, buses will not operate. Same way, metro services will operate throughout. As I earlier said, restrictions for the commercial vehicles will be there. Besides, there will be certain other instructions for the movement of the general public. Now there will be curiosity, say suppose if I want to go to the airport by my personal car only. And normally we use C-Hexagon or the parts of New Delhi. But if you want to go, say, in the first instance, we will advise that please use Airport Express line, metro line for going to the airport or reaching to any place. Metro will be the best services, easy service available. But in case still we want to go by, say, our own personal car to the airport, so we advise that plan your journey in advance, and there will be route divergence. Say if you are staying in south of Delhi, you can go via the outer ring road or the MG road. There will be directions available to reach the airport. Or say if you want to go from Model Town to the airport, you can go from Model Town to use Rani Jhansi flyover, then go to the Dwarika, then UER2 and come back to the service lane of the NH48. All these routes are described in detail in the traffic advisory. Next. All this information, next slide. Next. Next. Same way when we say of transportation services, how you can use this virtual help desk, it will take you to the tour of various services available, say by metro, by bus, taxi, airport and hotels to convention center. This will be for the delegates or the tourists who are visiting the capital city. Next. Same, if you look at below, we have provided the north-south corridor also and east-west corridor also. Say if you are staying in north, want to go to south, or if you are staying in east or west, how you can commute without getting disturbed by the regulations or the restrictions in the controlled zone of NDMC area. Next. Then in the virtual help desk, we will, for your assistance, will give you access to the various maps which will provide you further directions. Next. These are various other links for the cybercrime services. Links will be there for the other helplines also. Next.
about the medical hospitals also, how we will be providing services, those who are using ambulance services or in distress. There will be links to all the hospitals also, major hospitals. If you want to seek appointment for your emergencies, there will be a link. If you want to navigate, if you are using, say, if you want to come to RML hospital, how you can use it, and or if you want to use GB Pant hospital, or if you are wanting to use Primus hospital, or if you are wanting to use AIMS hospital, there will be no restrictions. There will be navigation services available. For this, we have informed Google services also and Map My India services also. Map My India is an indigenous app which will give you exact, accurate navigation, including the restrictions also. They have configured their navigation services as per the restrictions. So that will be more accurate than the other services available. Next. Besides, we will also provide you information about the tourist services or the marketplaces. Say, suppose certain marketplaces, because of the regulations where services will not be available, it will also be mentioned to you. And besides those marketplaces or the tourist places where the services are available, where the transport is available, and the options of the transport will be mentioned in the help desk. Next. Now, in further details, DCP New Delhi range will also explain to you whatever further details are required to be mentioned. Thank you. Thank you, sir. मैं ये जो ट्रैफिक रेगुलेशंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा वो ज्योग्राफिकल व्यू से करूंगा। सबसे पहले हम दिल्ली की बॉर्डर्स की बात करते हैं, बाहर से अंदर आएंगे तो सबसे पहला रेगुलेशन जो होगा वो हमारा बियॉन्ड दिल्ली बॉर्डर होगा। उसमें सबसे पहले नॉन डेस्टाइन्ड व्हीकल, जिन व्हीकल या पैसेंजर्स या कम्यूटर्स को दिल्ली में उनकी मंजिल नहीं है, उन्हें कहीं और जाना है, राजस्थान से उत्तराखंड जाना है लेकिन दिल्ली में से गुजर रहे हैं, ऐसे व्हीकल्स जो है, ऐसे कम्यूटर्स अपनी जर्नी एडवांस में प्लान कर ले, उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाएगा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। नंबर 2 आता है बॉर्डर्स पर। बॉर्डर्स पर जैसे सर ने बताया आपको कि हैवी गुड्स व्हीकल, मीडियम गुड्स व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल, ये कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल जो है वो दिल्ली की बॉर्डर्स में उन दिनों में जब रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होंगे तब वो एंटर नहीं कर पाएंगे। यहां पर हमारी बॉर्डर पर डे नाइट विजिल रहेगी। इसमें एक एक्सेप्शन रहेगा, जो एसेंशियल कमोडिटीज है जैसे कि दूध हो गया, सब्जी हो गई, फल हो गए, मेडिकल सप्लाईज हो गई इत्यादि, जो एसेंशियल कमोडिटीज लेके आ रहे हैं ऐसे गुड्स व्हीकल को प्रवेश मिलेगा दिल्ली में, लेकिन इन्हें अपनी मंजिल की तरफ प्रॉपर गाइड किया जाएगा। और जैसे सर ने बताया कि रिंग रोड, उससे आगे वो नहीं आ पाएंगे। अगर नई दिल्ली में उनकी मंजिल है तो बेशक वो आ पाएंगे। इंटरस्टेट बसेस की बात करते हैं जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में आती है, तो ऐसी बसेस को दिल्ली की बॉर्डर में प्रवेश मिलेगा, लेकिन इनके जो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स है, जिसे हम ISBT कहते हैं, टर्मिनस के नाम से आप फेमसली जानते हैं, सराय काले खां हो गया, कश्मीरी गेट हो गया, तो यहां तक वो नहीं आ पाएंगे। इनके अलग अलग टर्मिनेटिंग पॉइंट्स है जो कि रिंग रोड पर स्थित है, वो उससे आगे अंदर नहीं आ पाएगी ISBT सर्विस। जो बसेस दिल्ली में पहले से मौजूद है वो दिल्ली में जो भी रोड नेटवर्क है उस पर चल पाएगी, लेकिन वो रोड नेटवर्क सीमित रहेगा रिंग रोड और रिंग रोड से बॉर्डर के बीच वाला रोड नेटवर्क। रिंग रोड से अंदर NDMC इलाके में बसेस नहीं चल पाएगी। अगर हम जनरल ट्रैफिक की बात करते हैं तो बॉर्डर से जो जनरल ट्रैफिक है वो आ पाएगा, रिंग रोड तक आ पाएगा, रिंग रोड और बॉर्डर्स के बीच में वो चल पाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन रहेगा कि जो बसेस है वो रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं TSR और टैक्सी की। तो TSR और टैक्सी जो है ये नई दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, एक कंसेप्ट है कंट्रोल्ड जोन 1, दूसरा है कंट्रोल्ड जोन 2 और तीसरा है रेगुलेटेड जोन। जो कंट्रोल्ड जोन 1 है ये मोटा मोटा नई दिल्ली जिला जो है, न्यू दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ मेल खाती है इसकी बॉर्डर। जो कंट्रोल्ड जोन 2 है वो थोड़ा सा पोर्शन है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का, जो कि राजघाट की मूवमेंट को केटर करेगा।
और जो रेगुलेटेड जोन है वो रिंग रोड के अंदर का जो इलाका है उसे रेगुलेटेड जोन के नाम से हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो टीएसआर और टैक्सी जो है वो कंट्रोल्ड जोन 1 में एंटर नहीं कर पाएगी जब रेगुलेशन का पीरियड होगा। इसमें फिर एक्सेप्शन है, जो नई दिल्ली जिले के बाशिंदे हैं, यहाँ के बोनाफाइड रेसिडेंट्स है, यही उनका घर है, उनके पास आईडी प्रूफ है, तो वो टीएसआर और टैक्सी का उपयोग कर पाएंगे अपने घर तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा जो टूरिस्ट जिनके पास वैलिड बुकिंग है होटल के, वो टीएसआर और टैक्सी का इस्तेमाल करके नई दिल्ली के अंदर आ सकते हैं। जो नेविगेशन ऐप की बात करी सर ने, जैसे कि गूगल मैप माई इंडिया, तो ये सेवाएं इस्तेमाल करेंगे आप। आपको जो रूट की क्वेरी होगी आपकी, उसमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा इन रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए। आप अगर एयरपोर्ट से नई दिल्ली का रेगुलेशन मांगेंगे तो नई दिल्ली की बॉर्डर तक आपको रेगुलेशन मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। उसके बाद जो हमारा अरेंजमेंट होगा, लोकल पुलिस का अरेंजमेंट होगा, वहां पिकट पर रोका जाएगा, आदमी ने अपना आईडी प्रूफ दिखाया, वेरीफाई कर लिया गया, फिर उसकी गाड़ी अंदर जाएगी, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी है, चाहे वो टीएसआर है, चाहे वो टैक्सी है, उसको जाने दिया जाएगा। या तो वो दूसरी कैटेगरी हो जो कि टूरिस्ट है जिसके पास वैलिड बुकिंग है, उनको भी ऐसे प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद अंदर जाने दिया जाएगा। एयरपोर्ट नई दिल्ली और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भी पैसेंजर जाएंगे या वहां से निकलेंगे, उनकी मूवमेंट को सहूलियत देने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस एडवाइजरी में डिटेल्ड सजेस्टेड रूट्स है कि वो कौन सी तरफ से आना चाह रहे हैं, दिल्ली के कौन से क्षेत्र से वो एयरपोर्ट या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना चाह रहे हैं, तो सजेस्टेड रूट्स है। जैसा सर ने बताया कि आप ये बार बार हाईलाइट कीजिए, सभी को ध्यान में रखना है कि मेट्रो सेवाएं उपलब्ध है। सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन पर सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी जो कि प्रगति मैदान के बगल में है, उसके अलावा तमाम मेट्रो स्टेशन पर सुविधा उपलब्ध होगी। तो पब्लिक से यही अपील रहेगी कि सबसे पहला चॉइस वो रखे, वो मेट्रो को रखे। कहीं से भी कहीं जाना है तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ट्रैफिक एंटर करेगा उसको रेगुलेट किया जाएगा। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर्स पर पिकेट्स लगेगी, ट्रैफिक वहां होगा, लोकल पुलिस वहां मौजूद होगी। बोनाफाइड रेसिडेंट्स की मैं बात कर चुका हूं। इसके अलावा ऑथोराइज्ड व्हीकल्स जो नई दिल्ली जिले में आने के लिए अधिकृत है, इसमें शामिल होंगे जो भी सरकारी अधिकारी है जो उस दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं G20 समिट के लिए, या तो हाउसकीपिंग वाले जो होटल स्थित है नई दिल्ली में जहां पर डेलीगेशंस रुके हुए हैं, इन होटल्स की हाउसकीपिंग, केटरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, हॉस्पिटल्स से रिलेटेड कोई भी सेवाएं या अन्य इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस जो नई दिल्ली में स्थित है, इनसे रिलेटेड कोई भी व्हीकल्स है उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो नई दिल्ली में आ पाएंगे। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि इन सभी को वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके चलने पड़ेंगे, ऑथराइजेशन लेटर्स होंगे इनके। अगर वो कमर्शियल व्हीकल्स है तो इनके पास इनकी परमिट होगी जो कि वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सिटी बस सर्विस की। डीटीसी और डिम्स, ये दोनों बस सेवाएं रिंग रोड और रिंग रोड के बियॉन्ड चल पाएगी टुवर्ड्स बॉर्डर। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में इनकी मूवमेंट पर निषेध रहेगा। इसके साथ खास आप ध्यान रखें, मथुरा रोड आश्रम चौक से आगे की तरफ आईटीओ की तरफ, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान टनल, ये 4 चीजें बंद रहेगी तमाम ट्रैफिक के लिए। इस पर बस भी नहीं चलेगा, इसमें जनरल ट्रैफिक भी नहीं चलेगा। इस पर सिर्फ जो एजेंसीज रिक्वायर्ड है, जिनकी सेवाएं जरूरी है G20 समिट में, वही इन रोड का इस्तेमाल कर पाएंगे। जो कंट्रोल्ड जोन 2 है, वो जो हमारा ITO पॉइंट है, W पॉइंट A पॉइंट से लेके आप इसे मान सकते हैं ISBT कश्मीरी गेट तक, ये पूरा इलाका रहेगा नॉर्थ साउथ में, और ईस्ट वेस्ट में सलीमगढ़ बाईपास से लेके रंजीत सिंह फ्लाईओवर तक का ये इलाका रहेगा कंट्रोल्ड जोन 2। ये मुख्य तौर पर आपको इसमें जानने की जरूरत यह है कि ये 10 तारीख 9 और 10 के बीच की जो रात है तब से ये एक्टिवेट होगा और 10 की दोपहर को 2 बजे तक रहेगा कंट्रोल जोन 2। कंट्रोल जोन 1 जो है और रेगुलेटेड जोन, ये 7 और 8 के बीच की रात मध्यरात्रि तब से एक्टिवेट होगा और ये 10 और 11 के बीच की मध्यरात्रि तक एक्टिवेट रहेगा कंट्रोल जोन 1 और रेगुलेटेड जोन। जैसे ही ये कंट्रोल जोन 2 एक्टिवेट हो जाता है तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को अजमेरी गेट साइड से रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो जाएगी, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो जाएगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की साइड से, शांतिवन चौक पर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो जाएगी गीता कॉलोनी की साइड से, ITO पर विकास मार्ग की साइड से,
राजघाट चौक पर जवाहरलाल नेहरू मार्ग की साइड से और गुरु नानक चौक पर मिंटो रोड साइड से। इसके अलावा एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम की बात की साहब ने, तो ये जो है एक्टिवेट किया जाएगा 7 और 8 की मध्यरात्रि से, और इसके लिए एक डेडिकेटेड नंबर है 6828400604। ये एक डेडिकेटेड नंबर है जिस पर एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम को एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा 112 ERSS जो है, जो हमारा स्टैंडर्ड इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, उससे भी एक्सेस होगा ये सेवा। इस सेवा में कैट्स एम्बुलेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस, दिल्ली के प्रमुख प्राइवेट और सरकारी अस्पताल इससे जुड़े हुए हैं। इसमें समझने की 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सबसे पहला कंपोनेंट है जो हॉस्पिटल में डिप्लॉयमेंट होगी वो, और ये कैट्स और DGHS के कंट्रोल रूम में भी हमारी डिप्लॉयमेंट होगी। इसके अलावा साहब ने जैसे आपको बताया कि इंपॉर्टेंट मेजर जंक्शंस 20 आइडेंटिफाई किए गए हैं, वहां पर डिप्लॉयमेंट होगी, और 10 मोटरसाइकिल राइडर रहेंगे अलग अलग जंक्शंस पर स्थित, 24 घंटे 2 शिफ्ट में रहेंगे वो अवेलेबल। कहीं पर भी ग्रीन कॉरिडोर की डिमांड आ गई, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात हो गई, कोई ऑर्गन लैंड कर रहा है आउटसाइड दिल्ली से एयरपोर्ट पे, तो वो फैसिलिटी हम सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ प्रोवाइड करेंगे। सजेस्टेड रूट्स जो है उसका ब्यौरा ट्रैफिक एडवाइजरी में डिटेल में दिया गया है। इसमें हम एड्रेस करेंगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक्सेस, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक्सेस, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, सराय रोहिला रेलवे स्टेशन। इसके अलावा जो एयरपोर्ट की जर्नी होगी, इसमें हम अपील करते हैं लोगों से कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का उपयोग करें। इसमें हमने और डिटेल लाइंस का भी जिक्र किया हुआ है कि कौन सी जगह से आप आ रहे हैं, साउथ दिल्ली से आ रहे हैं तो कौन सी लाइन ले, ईस्ट दिल्ली से आ रहे हैं तो कौन सी लाइन ले, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आने पर कौन सी लाइन का प्रयोग किया जाए एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, ये डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा अगर रोड की जर्नी करते हैं तो हमारी तरफ से एक ये एडवाइजरी रहेगी सभी को कि आप एडवांस में चले, आपके पास टाइम होना चाहिए, और आप नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल करें, जैसे मैप माई इंडिया और गूगल, ये आपको प्रॉपर रूट्स इसमें नेविगेशन में दिखाएंगे कि जो रूट्स बाईपास करते हैं हमारे रिस्ट्रिक्शन को, ताकि आपको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। सिटी बस सर्विस जो है मैं बता चुका हूं आपको कि अलग अलग जगह चलेगी, लेकिन वो रिंग रोड और रिंग रोड के बियॉन्ड चलेगी। इसके अलावा आम जनता से अपील ये रहेगी कि जो सरकार ने घोषणा की है छुट्टी की, उसका फायदा उठाने की कोशिश ये ना करे कि हम घूमने चल पड़े दिल्ली की ओर। ये नई दिल्ली में जो समिट हो रहा है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा मौका है जब देश अपना कल्चरल हेरिटेज, अपनी वैल्यूज, अपनी इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शोकेस करेगा। तो इसमें हर नागरिक की ये भूमिका होनी चाहिए, उसकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है ये कि वो जो पूरा अपना कोऑपरेशन करे, कंट्रीब्यूशन करे कि हमारा जो ये इवेंट है सक्सेसफुल हो, इंडिया अपना सर उठा के दिखा सके, पूरी देश दुनिया में दिखा पाए कि हमने ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की हमारे में क्षमता है। तो लोगों से अपील रहेगी कि नई दिल्ली की तरफ घूमने ना आ जाए, यहाँ कैजुअल शॉपिंग के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। सरकार ने घोषणा कर दी है कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी मार्केट प्लेसेस, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स है वो सब क्लोज्ड होंगे। आप मेट्रो की सेवा का उपयोग करें और कहीं पे भी दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाए, नई दिल्ली को अवॉइड कीजिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को हैजल फ्री मूवमेंट हो, मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि इतने बड़े जो डेलीगेशंस आ रहे हैं उनकी मूवमेंट स्मूथ होनी है, सिक्योर होनी है, कोई सिक्योरिटी हैजार्ड नहीं हो सकता है, पब्लिक सेफ्टी जरूरी है। तो इसीलिए जनता से अपील है मेट्रो की सेवा का उपयोग करें और नई दिल्ली अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो वी आर ट्रूली डेडिकेटेड एंड कमिटेड, वी हैव सेट अप एन सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम उस मूवमेंट को हैजल फ्री, सीमलेस और एज फास्ट एज पॉसिबल करवाएंगे। थैंक यू। अब किसी का कोई सवाल है तो स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी प्लीज, मैप दीजिए, माइक दीजिए।
यादव सर, मेरा एक सवाल है कि जब G20 समिट की मीटिंग्स वगैरह या जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हैं वो हो रहे होंगे, तो उस दौरान कितने किलोमीटर का रेडियस जो है वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पूरा सील किया जाएगा ताकि वहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो? सील से मतलब आप क्या कहना मेरा चाह मतलब रहे हैं? कि जो गैर जरूरी गाड़ियां हैं, जैसे कि कोई भी बस हो या कुछ भी हो, यानी कि उस दौरान वहां पर ना रहें, या जिससे आप ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की पब्लिक है, जो दिल्ली से बाहर की पब्लिक है, वो उस एरिया में ना आए या बचे उससे। देखिए, हम जो कहना चाह रहे हैं कि मेट्रो सर्विसेज चलेंगी, जहां मेट्रो सर्विसेज चलेगी वहां पर अब पूर्णतया स्वतंत्र हैं आने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि प्राइवेट व्हीकल्स की जो हमने बात करी है कि अगर नॉन डेस्टाइन्ड है तो दिल्ली से आप एंट्री कर रहे हैं, उसके बारे में हमने निर्देश जारी किए। अगर आपका डेस्टिनेशन दिल्ली नहीं है, सपोज कीजिए आप रेवाड़ी से गाजियाबाद जाना चाहते हैं, बुलंदशहर जाना चाहते हैं, आप फरीदाबाद पलवल से इफ यू वांट टू गो टू सोनीपत और अंबाला, so there is a facility available in KMP, that is for the outer. Now come to the NDMC area, which we have explained कि it will be a controlled zone. If you have work, if you are coming even for visiting certain places, then use metro services. Don't use your private mode of transport, or if you don't have a purpose of visiting New Delhi, then taxis also, TSR will not be allowed. But if you have accreditation, if you have some purpose to visit hospital, if you are resident of New Delhi area, that is NDMC area, if you are visiting hotel, you are free to come by even TSR or the taxi, that we will honor. Our spirit is to honor and facilitate all types of movement. If it is with the purpose or aim in New Delhi, yes, we will honor it. As far as you mentioned about the safety aspect and the security aspects of the arrangement, other special CP will also give you a detailed briefing. And all of you, including us, we are not new to certain security restrictions during such events. We have hosted earlier also Commonwealth Summit also, or ASEAN Summit also, Organization of African Unity Summit also. So we have hosted other prestigious summits, International Solar Alliance also. So restrictions will be there near the venues and in NDMC area. If I say what sort of restrictions, say once you land, once the delegations start coming up, there will be restrictions around AFS Palam also, T3 terminal also, whenever the head of the states or the governments or the head of the international organizations will be visiting. There will be regulations, which are standard regulations, which every country follows. Same way when the head of the states will be visiting and coming to the hotels, during that period, near that period, there will be more restrictions. Once they are inside, there will be lesser restrictions. As it happens during the VVIP movements. Same way at the time of the summit, when the visitors will be going to or the head of the states will be going to the Bharat Mandapam. Obviously, on the route and near the venue, there will be restrictions. Next day, that is 10th of September, head of the states and delegations will be visiting Rajghat also. So there will be restrictions that we are calling it as the controlled zone 2. So it will be a dynamic arrangement. As far as specific and certain thing is concerned, we have defined what is controlled zone, what is regulated zone. I think most of you have got the e-copy of the traffic directory on your phone also, and otherwise we'll be mailing it to you also. If you'll go through that, you'll come to know about the more specific things. And this is not the first and only briefing from the traffic vertical. There will be more briefing, and if need be, we will be issuing daily press bulletins regarding the traffic arrangements in the city. Thank you, sir. सर मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि जो वीकेंड में तो हम मान के चलते हैं कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है प्राइवेट कई सारे दफ्तरों में भी, लेकिन 8 तारीख को जो फ्राइडे है उसके लिए जो सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ है वो केवल दिल्ली के लिए है।
तो दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग नोएडा और गुड़गांव में भी जॉब करने जाते हैं, तो क्या वहां के प्रशासन से भी कोई बात हुई है कि वो लोग भी 8 तारीख की छुट्टी घोषित करें? और दूसरा सवाल ये कि दिल्ली के बहुत सारे मार्केट्स की तरफ से मीडिया के पास ये जानने के लिए क्वेरीज आ रही है कि ये जो 8 से 10 तारीख वाली छुट्टी घोषित हुई है, इसमें न्यू दिल्ली का तो सीन क्लियर है, लेकिन दिल्ली के बाकी बाजारों की क्या स्थिति रहेगी? क्या वो पूरी तरह से खुले रहेंगे? जैसे कहा जा रहा है कि शायद जो डेलीगेट्स की वाइफ है वो चांदनी चौक या कहीं दूसरे मार्केट्स में विजिट के लिए जा सकते हैं, तो उन मार्केट्स का क्या स्टेटस रहेगा? देखिए, मैं बताता हूँ, बहुत ही शिखर सम्मेलन का एक बहुत ही विशिष्ट और स्थायी कार्यक्रम होता है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता है। जो स्पाउसेस की जो बात करी, उनका बहुत ही स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं। पहले दिन पूसा इंस्टीट्यूट जाएंगे, दूसरे दिन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, पहले दिन के फर्स्ट हाफ में पूसा इंस्टीट्यूट जाएंगे, सेकंड हाफ में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स है, जिसको जयपुर हाउस कहते हैं। वहां पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और शॉपिंग वगैरह के भी प्रबंध किए गए हैं विदेश मंत्रालय द्वारा और बाकी मंत्रालयों के द्वारा। तो वो हमारे जो यातायात का इंतजाम रहेगा वो रहेगा। दूसरे दिन जब हेड ऑफ द स्टेट्स एंड अदर इंटरनेशनल डेलीगेशंस विल विजिट एंड कंप्लीट देयर विजिट टू द राजघाट, उसके बाद स्पाउसेस राजघाट आएंगे। तो ये स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं जो हेड ऑफ द स्टेट्स की स्पाउसेस हैं उनके। उसमें मिनट टू मिनट में कहीं गुंजाइश ज्यादा रहती नहीं है। और रही बात जो आपके बाकी आसपास के जिलों की और बाकी राज्यों की अवकाश की बात है, ये उनका निर्णय है। बाकी दिल्ली के लिए इतने 3 दिन का अवकाश मुझे लगता है कि पर्याप्त है। रही बात आपने जो मार्केट्स की बात कही है, देखिए इसेंशियल सर्विसेज अगर सेवाएं हैं जहां पर मिल्क बूथ हैं और जो इसेंशियल सर्विसेज या इसेंशियल आर्टिकल्स देते हैं वो जो हैं, और इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं, वो पूरी दिल्ली में खुले रहेंगे। नई दिल्ली एनडीएमसी एरिया में बाकी जो मार्केट हैं या मॉल्स हैं एनडीएमसी एरिया के अंदर, वो बंद रहेंगे, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी। अब एनडीएमसी एरिया के बाहर जितने भी मार्केट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो खुले हुए हैं, वहां कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। आपने कहा कि सिर्फ प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, अलावा उसके क्योंकि रामचरण अग्रवाल चौक, आईटीओ मेट्रो स्टेशन या फिर और जो दूसरे कनेक्टेड हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, ऐसा भी आया था सामने कि ये 4-5 मेट्रो स्टेशन बंद होंगे। अगर वो बंद होते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लोगों का, कम्यूटर्स का उस वक्त में वहां से थ्रो एंड थ्रो रहता है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि व्हाट्सएप पर लगातार ये एक र्यूमर चल रहा था कि लॉकडाउन वाली सिचुएशन हो जाएगी, लोगों को घरों में बंद किया जाएगा, रोका जाएगा। खास तौर से लोकल मार्केट्स के लिए सवाल करना चाह रहा हूँ, तो उसमें भी क्या लोग? देखिए, आप जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं वो फिर र्यूमर को हवा देगा। मैं इसको दूसरे तरीके से उत्तर देता हूं। और दूसरी बात की कल्पना मत कीजिए ना, वो बंद हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा उत्तर है कि प्रगति मैदान के नजदीक जो मेट्रो स्टेशन है वो प्रभावित रहेगा, बाकी सभी मेट्रो स्टेशंस खुले रहेंगे। और अगर कोई कंटिजेंसी होती है और अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो फिर आपको उसकी भी जानकारी दे दी जाएगी। अगर ये होता है कि प्रगति मैदान वाला मेट्रो स्टेशन भी खुला रखना है, उसके बारे में कोई निर्णय बदलता है, तो भी आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। सर, हाय, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन फ्रॉम हियर। हाय, if you could tell us a little about food deliveries and other services, companies which are used for mobility purposes, also for delivering. See, cloud services will be affected in NDMC area. Sure, cool, thank you. जी, माइक दीजिए। Thank you, sir. So some of us media men have been accredited with through MEA for covering this G20 summit. So, sir, shall we be getting some special passes or something? Otherwise, how will we be commuting? Just to See, cover? if you are having the pass of the MEA or the PIB, we will honor it. So then no problem. And we'll try utmost to ensure that all the media passes are honored as much as possible. All right. Thank you.
I don't have any confusion about that. Good afternoon, sir. देखो, if there are regulations, regulations will be for everyone, including the personal cars. So try to use metro. Sir, I have a question. Sir, are all the delegations and heads of states, are they staying in the NDMC area? Because there have been some speculation that some of the delegations will be traveling from Gurgaon as well. See, Oberoi and Leela are the two other venues in Gurgaon. Sheraton in Saket is a venue which is in the South District. If you talk in terms of the geographical jurisdictions, then Hyatt and Leela also is in Southwest District. Then you have Pullman in Aero City, Pullman and Marriott, and Lodhi is in South District. So our endeavor is not to affect or shut down like everything in nearby these areas. There will be time-specific regulations in the places around this. Whatever other services are available, those will be available. Those will not be impacted. That is the reason the area of the controlled zone, we have kept it very limited. If someone is moving from Sheraton, so yes, for the time being, during that period of movement, a certain road will be affected, otherwise it will be through. All taxis, TSR, everything will be moving beyond Ring Road. As Alap has mentioned that from Rajokri till Dholakua, that stretch via Sanjay T point. So that we are keeping it a bit regulated in the sense that we want to have a free access towards the airport, unhindered access, though there will be certain regulations. But otherwise, remaining stretches, we will keep it free. Sir, good afternoon, sir. This side, sir. Left, sir. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो तमाम ट्रैफिक अरेंजमेंट्स आप लोगों ने किए हैं ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जाहिर सी बात है किए होंगे. मेरा सवाल ये है कि सर क्या जो कंट्रीज आ रही हैं जिनके हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं और डेलीगेशन आ रहा है, क्या उनकी तरफ से भी कोई रिक्वायरमेंट है, उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट ट्रैफिक को लेकर आप लोगों से मांगी गई हो प्रोटोकॉल के हिसाब से? देखिए, Delhi Police, this is not the first event which we are organizing, but we are proud of that. We are hosting the G20 summit with such a huge global participation. And we have sufficient experience how to handle the traffic situations. And in fact, we have analyzed the traffic restrictions, what have been there in the Bali summit or in the Osaka summit or in the Beijing summit. We analyzed it, and our traffic restrictions are far more liberal if you analyze those restrictions. And our endeavor has been to provide seamless services to our citizens first, so that we can be proud of hosting this event, and the guest visitors also feel proud that yes, they have come to a place where the spirit and feeling of one earth, one family is there. Vasudhaiv Kutumbakam runs in our DNA, and we will ensure that we provide the best of the services. सर इसमें जैसे लोग इस एरिया में रहते हैं, हमारे एनडीएमसी या इस तरह के जो है, तो उनके कोई जानकार या रिश्तेदार आता है, तो इसके लिए कोई पास भी बनेंगे उनके लिए स्पेशल, कोई उनको कोई अलाउ किया जाए इसमें, कोई ऐसा जारी करने की कोई है सिस्टम? देखिए, it's a question, yes. Sometimes we can allow through our no entry, we have a system of no entry passes, temporary passes. But as I said, it has to be for the essential work. Thank you, sir. Thank you. Hi, sir, I'm Siddhant from Vion. My question is, how many Delhi police personnel will be on the ground on the day of the summits on 9th and 10th, if you can give a figure? The whole strength of Delhi police will be there. As far as traffic police is concerned, the arrangement will involve around 10,000 personnel. Currently, we have a strength of about 5,500 personnel, officers, and remaining which we are taking from the other verticals and units of the Delhi police. So 10,000 personnel of the traffic police will be on the ground? 10,000 police personnel will be there for ensuring smooth traffic arrangements in the city. Thank you. गुड आफ्टरनून सर. सर दिस साइड यादव साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी.
पैडल स्ट्रिक्स लोगों की अगर बात कर लें जो पैदल चलने वाले हैं स्पेसिफिक उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस जारी किए जाते हैं? क्योंकि गुरुद्वारा हो जाता है और जगह हो जाती है, रकाबगंज है और बाकी भी मंदिर वगैरह जो हैं, इस समय जाने के लिए उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस विशेष तौर पर आपके द्वारा रखे जाते हैं? देखिए, G20 गर्व का विषय है, इसको एंजॉय कीजिए, उल्लास के साथ आप गुरुद्वारा भी जाइए, मंदिर भी जाइए, मस्जिद भी जाइए, यही हम लोगों की परंपरा रही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। सर, अगर पैदल जाने वाले मैं पैदल जाने वालों के लिए ही कह रहा हूँ, बिल्कुल। First and topmost priority is to ensure the safety of pedestrians. See, the traffic arrangement should be, traffic's job should be pedestrian oriented, not the vehicle oriented. The road user, that is the pedestrian, should be safe, even if vehicle goes slow. गुड आफ्टरनून सर। जो ट्रैफिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं पहले से, क्या इनके अलावा भी कंट्रोल करने के लिए, निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे और लगाए गए हैं? देखिए, सीसीटीवी कैमरा काफी लगाए गए हैं और जब कंट्रोल जोन हो गया तो कंट्रोल तो वैसे ही हो जाएगा, तो वो एक, इसके अलावा जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से सेफ सिटी प्रोजेक्ट है हम लोगों का, उसमें काफी कैमराज लगाए गए हैं। रही बात जो आपके सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में, जो कंसर्न स्पेशल सीपी अपनी ब्रीफिंग देंगे उस दौरान में आप पूछ लीजिए, बट एडिक्वेट नंबर ऑफ द कैमराज फॉर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स. I think someone has covered in the today's daily also about some artificial intelligence and analytics will be there. Sir, over here. And are already there. Sir, I have a question. One of the brothers asked कि लोग जो दिल्ली से गुड़गांव की तरफ, नोएडा की तरफ जाएंगे, उनके लिए क्या है ऑफिसेज के लिए? मेरा ऑपोजिट सवाल है, people who are working in Delhi, like media person and whatever it is, who are staying in गुड़गांव और नोएडा, सर उनको जब अंदर आना होगा तो स्पेशल कुछ पास होगा या एक्रेडिटेशन दिया जाएगा या जब वो अपनी गाड़ी से ट्रैवल करेंगे? See, as I said, we will honor all the passes, but as I also said, if you are coming from Gurgaon, follow IFCO Chowk, come via MG Road, Mehroli Road, Outer Ring Road and these places. And if you want more easy access, metro is straight away will give you the access. Sir, our offices in Lutyens, Delhi with NDMC itself. I'm saying that metro services will be available in Lutyens, Delhi. Okay. You name any metro station, it will be open. So if with the accreditation from the MEA, we can't drive our car and come to the NDMC area? You can come if you have MEA accreditation, but you have to follow the directions for the four-wheelers. As I said, you follow Rajiv Chowk, Mehroli, and you come via those places. Thank you. But if you are, say, come at Rajokri and say, I have the card, that will control it. सर, अगर 8, 9 और 10 तारीख को फॉरेन जो डेलीगेट्स आएंगे, उनका क्या कार्यक्रम है, कहाँ जाने का है, अगर आप एक बार फिर से बता सकें तो? देखिए, मुख्य जो है, जो भी टाइम होगा, जो स्पेसिफिक डेट है, उनका आगमन होगा, एयरपोर्ट से अपने होटल जाएंगे। 9 तारीख को शिखर सम्मेलन का शुभारंभ होगा। वेरियस जो सेशंस हैं वो भारत मंडपम में होंगे। 10 तारीख को प्रातःकाल राजघाट जाएंगे, राजघाट से फिर भारत मंडपम आएंगे और शिखर सम्मेलन का समापन होगा। 9 तारीख को एक और है कि शाम के समय में गाला डिनर होगा। तो शाम के समय जो टाइम है, जब शिखर सम्मेलन का जो 9 तारीख को प्रथम चरण होगा, उसके बाद वहां पर शाम के समय पहले होटल जाएंगे, होटल से फिर वापस डिनर के लिए भारत मंडपम आएंगे और डिनर के बाद वापस होटल की तरफ प्रस्थान करेंगे। Sir, can you tell us, give us some advice, like we need to interview some diplomats at different hotels please on that? Contact MEA. MEA? Sir, Yes. Okay. I am not the right person for this job. Actually, we need to travel on the road at that Contact time. MEA, and then once you contact, seek an appointment, then follow the traffic advisory. Okay. We will help you out. Thanks. सर ये एयरपोर्ट आने जाने के दौरान जब डेलीगेशंस आएगा, उस दौरान किसी प्रकार का प्रतिबंध या अरेंजमेंट्स रहेंगे सर? वहां पर लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, एयरपोर्ट में अगर किसी की फ्लाइट्स हैं, we will honor that. He has every right to use the flight services if it is available.
जल्दी कर देंगे। अभी 9 सितंबर है, उसके बाद फिर आप कहेंगे कि अभी इसमें अलर्ट डालिए। अलर्ट तो बेसिकली तब से डालेंगे ना जब 7 तारीख से। एडवाइजरी, ट्रैफिक एडवाइजरी, सी वी आर ओपन, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। ये नहीं है कि आज हमने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हो सकता है कि आप में से कुछ बहुत अच्छा सुझाव दे देंगे। फॉर ऑल ऑफ अस, भाई it's an opportunity that we are hosting this, and it's a matter of pride for Delhi Police as an organization, and all the members of the Delhi Police, Delhi Traffic Police, all people will put their best foot forward to ensure that we provide seamless and hassle-free service. Any other question? Yeah, we can go for. आपने 9 तक का ही बताया सर, 10 और 11 का नहीं बताया, थोड़ा वो नहीं, 10 के बाद मेरे पास कार्यक्रम नहीं है ना। 10 के बाद का नहीं बताया आपने कि 10 को क्या 10 को सिर्फ वहीं पर ही भारत मंडपम में सुबह फिर दोबारा भारत मंडपम जाएंगे और समापन समारोह होगा। और फिर भाई अतिथि हैं हमारे, जैसी इच्छा होगी उनको विदा किया जाएगा।